تو میں ان کا پیچھا کروں گی. کشمیری ماں اور کشمیری باپ کی بیٹی ہوں, ہار نہیں مانوں گی. سرکاری اہلکار نے جو ڈیوٹی پہ تھا اس نے کہا کہ مریم نواز شریف کو ہم سمیش کر دیں گے, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تم کشمیر میں جاؤ, ضرور جاؤ, کشمیریوں سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن اگر تم نے چوری کیا تو یاد رکھو مسلم لیگ نون اور آپ کے ساتھ مریم نواز شریف آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی. کشمیر کی بیٹی مریم نواز اور کشمیر کے بیٹے مظفر آباد والے اکٹھے ہو گئے تو عمران خان کو پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر صرف پیپلز پارٹی بات کر سکتی ہے. نون لیگ پی ٹی آئی نہیں. جیالے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ایک بار پھر ایک تیر سے دو شکار. 25 جولائی کو کشمیری عوام کٹ پتلی کو جواب دیں گے. پیپلز پارٹی کے خاتمے کی بات کرنے والے یہاں عوام دیکھیں گے. پیپلز پارٹی اس ملک کا واحد جماعت ہے جو کشمیر میں کبھی سودا نہیں کر سکتی. اس ملک کی واحد جماعت ہے جو آج تک ان کا قیادت نے مودی سے ملا بھی نہیں, مودی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. اگر ایک جماعت ہے جو مودی کے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر جواب دے سکتی ہے تو وہ نام مسلم لیگ نواز ہے, وہ نام تحریک انصاف ہے, وہ صرف اور صرف قائد عوام کا پیپلز پارٹی ہے. مریم نواز اور بلاول بتائیں کشمیر کے لیے آپ کی جدوجہد کیا ہے؟ دونوں بچے آزاد کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. دونوں کو پہلے گلگت بلتستان میں شکست ہوئی, اب آزاد کشمیر میں ہوگی. وزیر مملکت فاروق حبیب کے جوابی وار بولے دونوں بچے اپنے اپنے ابو کی چوری بچانا چاہتے ہیں. مودی کی بات کرنے والے جو باتیں کر رہے ہیں تو مودی تو آپ کے پرائیویٹ فنکشنز میں آتا تھا, اور میں یہ بلاول سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کب سے جو ہے وہ کشمیر کے جو ہے وہ چیمپئن بن گئے. جھوٹے دعوے جا کر گلگت بلتستان میں بھی آپ کرتے رہے, وہاں آپ کو بدترین شکست ہوئی. اب آپ کو آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنی شکست جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. بلاول کی صرف اتنی کارکردگی ہے کہ آپ ایک پرچی کے اوپر چیئرمین بنے ہوئے ہیں. مریم کی صرف اتنی کارکردگی ہے کہ وہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں. آج تک کشمیریوں کے لیے آپ کی جدوجہد کیا ہے؟ آپ کے اوپر کشمیری عوام کس بات کی وجہ سے جو ہے وہ اعتماد کر لیں؟ بلاول دل کا جانے, بلو رانی کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا. وزیر داخلہ شیخ رشید بولے سیاسی سرگرمیاں ہونا اچھی بات ہے, کوئی دھمکی نہیں ہو رہی. تحریک انصاف آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی. آئندہ الیکشن میں بھی قوم عمران خان کو ووٹ دے گی. دیکھیں بلاول دل کا جانی ہے, کشمیر میں جا رہا ہوں, بلو رانی کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا. باقی جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ کیا کریں گے کشمیر میں, عمران خان وہاں جیتے گا جی, بلہ وہاں جیتے گا, اور ویلی شار پی ٹی آئی کی سیٹ جو ہے وہ ہمارے ذمے ہیں, بہت دور جیتیں گے انشاءاللہ. دیکھیں سیاسی ایکٹیویٹی ہونا اچھی بات ہے, کوئی دھمکی نہیں ہو رہی کہ دسمبر کو چلے جائیں گے, دسمبر کی رات نہیں دیکھیں گے. یہ یار ہم اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان کو قوم یہ ووٹ دے گی. اس کے لیے ہمیں اپنی پرفارمنس اور بہتر کرنی ہوگی. ویلکم بیک. پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کا خطرہ. وزیراعظم عمران خان کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل. کہا پاکستان میں بھارتی اور انڈونیشیا قسم کا کورونا وائرس کا خطرہ موجود ہے, اگر شہریوں نے احتیاط نہ کی تو پھر سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے ہمارے کیسز نیچے آتے آتے اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئے, اور اوپر اس لیے جا رہے ہیں کہ خاص طور پہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کا جو انڈین ویریئنٹ ہے اب یہ پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئی. تو میں آج سب آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے لوگ تھک گئے ہیں, یہ جو چوتھا ویو اگر چل پڑا اور تیزی سے اوپر کیسز چلے گئے تو پھر ہمیں لاک ڈاؤنز کرنے پڑیں گے, ریسٹورینٹس بند کرنے پڑیں گے. وفاقی وزیر اسد عمر نے جولائی میں کورونا کی چوتھی لہر کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے سمارٹ لاک ڈاؤن کا انتہا دے دیا. بولے آزاد کشمیر میں الیکشن کے موقع پر ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بے احتیاطی کے باعث ملک میں کورونا پھر زور دکھانے لگا. ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 3.33% ہو گئی. 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 1683 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. عالمی وائرس مزید 24 پاکستانیوں کی جان بھی نگل گیا. ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 34,531 ہو گئے.
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह हाफिज ताहिर अशरफी ने मुल्क भर के उलमाए कराम से जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमाअत में असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के खुसूसी तौर पर आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करने की अपील की है। उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह कल मुल्क भर में जुम्मतुल मुबारक के खुतबात में आइम्मा अतहार और अहले बैत और बिलखुसूस हज़रत इमाम मूसा काज़िम के हवाले से उनके फ़ज़ाइल और उनकी सीरत के हवाले से हमारे जो उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन और वाइज़ीन हैं वो ज़रूर बयान करेंगे। मुक़द्दसात की तौहीन करने वाला कोई भी हो उसे माफ़ी नहीं दी जाएगी। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी से चाकू लेकर मुलाकात के लिए आने वाले शख्स को पकड़कर हवाला पुलिस कर दिया गया। गवर्नर सिंध ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने फोन करके खैरियत दरियाफ्त की है। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं फजर के बाद एक शख्स ने आकर अलहदा बात करने का कहा। करीब गया ही था कि मुश्तबा शख्स ने जेब से चाकू निकाला। हमारे साथियों ने फौरी तौर पर उस शख्स को पकड़ लिया। तफ्तीश जारी है। या फिर जुमला दुरुस्त है। मैं फजर के बाद एक साहब आए थे और उन्होंने मुझसे अलहदगी में बात करने की बात की थी, लेकिन अभी मैं उनसे उठा ही था उनसे बात करने के लिए और करीब गया था तो इतने में उन्होंने चाकू उनकी जेब में था वो निकाला और एकदम से फिर हमारे जो साथी थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। बस ये हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, लेकिन तफ्तीश अभी हो रही है कि वो क्या हकीकत है उस आदमी की और क्या क्यों आया था और क्या मकसद था और किस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी दारुल हुकूमत पर लड़की और लड़के पर होने वाले तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आईजी इस्लामाबाद को टेलीफोन किया और उनसे वाक़े की तफसीलात तलब की हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि इस मामले की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भिजवाई जाए। तमाम मुलव्विस मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए पुलिस अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करे। ऐसे अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सीटीडी मर्दान रीजन ने कार्रवाई करते हुए जिला कचहरी पर खुदकुश धमाके में मुलव्विस मरकजी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द 2016 में जिला कचहरी पर धमाके के मरकजी मुलजिम थे। दहशतगर्द तिलावत उर्फ खला महब बांडा में दहशतगर्दी की अर्ज से मौजूद थे। सीटीडी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं नहीं चाहते इस्लामाबाद में टैंकर माफिया जन्म ले। पानी के मंसूबे से इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 के इलाका मकीनों के सबसे बड़े मसले पानी की किल्लत का खात्मा होगा। वजारत साइंस के इदारे PCR, WR और CDA के दरमियान पानी की फराहमी के हवाले से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किया गया। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, मामून खसूसी बराए CDA और चेयरमैन CDA मोहम्मद आमिर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में शिबली फराज का कहना था बारिशों का पानी जमीन में जाकर जमा नहीं होता, जिसके बायस पानी ज़ाया हो जाता है। ऐसे इकदाम उठाएंगे जो जमीन के अंदर से भी पानी जमा कर सकें। इस्लामाबाद में तकरीबन ओवर 276 मिलियन गैलन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इस वक्त जो है तो तकरीबन 76 मिलियन गैलन उनको मिल रहा है। उसमें भी वेस्टेज भी हो जाता है, तो एक गैप है। उसको हम नहीं चाहते कि इस शहर में भी टैंकर माफिया जन्म ले। वफाकी वजीर तवानाई असद उमर का कहना था कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला पानी का है। NH1 के लोगों का यही बड़ा मुतालबा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सिर्फ चांद पे पहुंचने की जरूरत नहीं है, बड़ी बुनियादी चीजें जो हैं उसके अंदर भी कम कीमत के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से मदद की जा सकती है, ये उसका बहुत अच्छा नमूना है। उनका कहना था अली नवाज के साथ इस्लामाबाद में पानी के लिए मुजाहरे भी किए। ऐसे मजीद इकदाम भी उठाए जाएंगे जिससे अवाम के मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन रजा मेहदी के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंगला कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को कोर के ज़ेर एहतमाम जारी वॉर गेम्स पर भी ब्रीफ किया गया। ISPR के मुताबिक स्ट्राइक कोर फॉर्मेशन की मुस्तकबिल से मुतालिक तरबियती उमूर की तारीफ की। आर्मी चीफ ने गैरिजन अफसरान से खिताब में कहा कि हमें बदलती सूरत हाल में अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए। हमें किसी भी सूरत हाल में सहल पसंद नहीं होना होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अमल की मुकम्मल हिमायत कर रहा है। मगरबी सरहदों पर बेहतर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंतजामात नागुज़ीर हैं।
इंग्लैंड ने पहले वनडे में पाकिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 142 रन का हदफ इंग्लिश टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। डेविड मैलन 68, ज़ेक क्राली 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फिल साल्ट 7 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने। मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। मकबूजा कश्मीर के ज़िला कुलगाम और पुलवामा में 2-2 जबकि ज़िला कुपवाड़ा में एक निहत्ते कश्मीरी से जीने का हक छीन लिया गया। बुरहान वानी के यौम शहादत पर इस्लामाबाद में तकरीबात का इनेकाद किया गया। शुरका ने बुरहान वानी समेत दीगर शहदा को खराज अकीदत पेश किया। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को नई जिला बख्शने वाले शहीद बुरहान वानी का यौम शहादत। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार खान आफरीदी ने इस्लामाबाद में मुनक्दा तकरीब से खिताब में कहा, बुरहान वानी ने जाम शहादत नोश करके मकबूजा कश्मीर की तहरीक में नई रूह फूंक दी है। बुरहान वानी जैसे सपूत क्यों मजबूर हुए कि वो भारत का वो मसख शुदा चेहरा जिसमें इंसानियत की तजलील प्रायोरिटी नंबर 1 है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के UN परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस को तार तार कर चुका हुआ। नेशनल प्रेस क्लब में होने वाली तकरीब से हुर्रियत रहनुमा फैज़ नक्शबंदी, महमूद अहमद सागर, सेनेटर मुश्ताक अहमद ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने शहीद बुरहान वानी को नई नस्ल का हीरो करार दिया। बुरहान वानी साहब का आज का दिन है। ये नौजवान अपने भाई की शहादत की वजह से इसमें दाखिल हुआ। पहले इनका भाई शहीद हुआ। कश्मीरी अवाम 9 लाख भारतीय अफवाज का मुकाबला करते हुए अपनी हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए जदोजहद करती है। इंडिया की दहशतगर्दी और जारहियत के खिलाफ ताकतवर ज़रब और बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी। मुकर्ररीन ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के बासी भी आज़ादी का सूरज तलू होते देखेंगे। मोदी सरकार को अपनों ने ही आईना दिखा दिया। काबीना के 12 अराकीन मुस्ताफ़ी हो गए। भारतीय वज़ीर आज़म ने निदामत की बजाय 36 नए अराकीन को अपनी काबीना का हिस्सा बना डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेहत, तालीम, IT, मेहनत व अफरादी कुव्वत समेत दीगर वजारतों ने शदीद तनकीद के बायस अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। 5 अगस्त के कवानीन वापस लेने तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने फिर वाज़ेह कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पुरअमन अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान और अमरीका मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान नेड प्राइस ने वाज़ेह कर दिया। ईरान में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अहम मुज़ाकरात हुए, जिसमें अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी हल और इस्लामी रियासत के क़याम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।